اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ستارہ مریخ، جو کہ ایک بہت بڑا پلینٹ ہے۔ اس کا برج ثور میں قیام 12 جولائی سے لے کر 24 اگست تک ہو رہا ہے۔ تو 12 جولائی سے 24 اگست تک 12 برجوں پر جو اثرات آئیں گے ہم ان کی ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ برج حمل کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے برج حمل کے دولت، ذرائع آمدنی اور کاروبار میں اضافہ ہوگا، اور ان کو کافی دولت ملتی نظر آتی ہے اور یہ کافی کچھ کماتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، برج حمل والے احتیاط کرنا، آپ کو انٹرنیٹ اور میڈیا کے نظریے تک تحریر و تقریر کے ذریعے کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے قیمتی کاغذات کی احتیاط کرنا، چیک اسٹامپ کسی کو مت دینا، کریڈٹ کارڈ کا اور قیمتی کاغذات کا خیال رکھنا۔ اب چلتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ تو برج ثور کے خانہ نمبر برج ثور کے خانہ نمبر 1 یعنی شخصیت کے خانے پر یہ لگے گا۔ برج ثور کے شخصیت کے خانے پر یہ لگنے سے برج ثور والوں کی شخصیت حیثیت اجاگر ہوگی۔ ان کی شخصیت کی میکانگی کشش سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ہر جگہ ان کی بات مانی جائے گی، لوگ ان سے پیار کریں گے اور محبت سے پیش آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب یہ اپنے تمام کام کر لیں تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ لوگ ان کے گرویدہ و عاشق نظر آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں، یہ وہ وقت ہے جب یہ آپ کے خانہ نمبر 12 پر لگے گا۔ یہ خانہ نمبر 12 پر لگنے سے آپ کے برج جوزہ کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے برج جوزہ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، ان کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، ان پر سایہ جادو نظرات کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے بیرون ملک امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اور تمام ان کو کامیابیاں فتح ملتی نظر آتی ہے۔ حج، زیارات اور بیرون ملک سفر ان کا آسان ہوگا۔ اگر یہ وہاں جانا چاہیں، اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی ہی ملتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اخراجات کنٹرول ہوں گے۔ ان کے ماضی کے جو کیس تھے، جو ری اوپن تھے، اب وہ کیس دب جائیں گے، اور ماضی کے جو بھی مثلا ان کی باتیں تھیں جن میں ان کو نقصان پہنچا رہا تھا عزت، کریڈٹ، شان کو، تو وہ مثلا اب درست ہوگا، وہ دب جائیں گی۔ اب چلتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے، یہ بہت اچھا خانہ ہوتا ہے کسی کا، یاد رکھنا کہ 11 نمبر خانہ کسی کا بہت اچھی منصوبات میں سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ خانہ نمبر 11 پر لگنے سے برج سرطان والوں کے دوست و احباب ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو بہت بڑے کاروباری فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خواہشات دل پوری ہوں گی، وہ خواہشات جو دم توڑ چکی تھیں، جن کا اب کوئی پورا ہونے کا نشان ہی نہیں تھا، تو وہ خواہشات ان کی پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنی زندگی کے ہر مقصد میں یہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو کاروباری فوائد بھی بہت ملیں گے۔ جتنا کاروبار کریں گے، جیسا کاروبار کریں گے، برج سرطان والوں کے لیے یہ آموں کا کاروبار بہت اچھا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام بہت اچھا ہے، وہ کریں گے تو ان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ دوستوں کا ساتھ ہوگا، اور دوست صرف ساتھ نہیں دے رہے بلکہ پیسہ بھی اور مدد بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں سرطان برج کی طرف۔ سرطان برج اسد برج کی طرف۔ لیو
اب 2-1 माह से कारोबारी सिलसिले में बहुत बड़ा परेशान था, इसको कारोबारी परेशानियां घेरे हुए थी। तो अब उनको वो कारोबारी परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी। इनके खाना नंबर 10 से गुजरेगा 12 जुलाई से अपना 24 अगस्त तक। तो इसके कारोबार, इज्जत, शान, मार्केट वैल्यू, क्रेडिट और जो है ना इसमें इजाफा होगा, और इसमें इजाफा होता नज़र आता है। और ये काफ़ी इसमें जो है ना मसलन वो कमाते हुए नज़र आते हैं कारोबार में। इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इज्जत, कारोबारी इज्जत, शान, क्रेडिट में इजाफा होगा, और सब लोग इसके जो है ना कारोबारी धाक की तारीफ़ करेंगे और इसके मुनाफे और कारोबार की भी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। अब जो है ना चलते हैं हम बुर्ज सुंबला की तरफ। तो बुर्ज सुंबला वाले जब मरीख 12 जुलाई से 24 अगस्त तक बुर्ज सौर में होगा, तो वो आपके खाना नंबर 9 में होगा। जब वो आपके खाना नंबर 9 में होगा, तो आपको बैरून मुल्क क़याम, बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपको खुले मिलेंगे। आप बैरून मुल्क आसानी से जा सकते हैं, और आप जो है ना बैरून मुल्क आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा आपके कानूनी मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। अगर वो तालिब इल्म जो कि बैरून मुल्क आला तालीम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो जाते हुए नज़र आते हैं और उनके वज़ाइफ लगते नज़र आते हैं। इसके अलावा माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, आपको मज़हब में दिलचस्पी बढ़ेगी, इबादत, रियाज़त, इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी, और आपका रुझान मज़हब की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आपको आला तालीम हासिल करने के लिए भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते खुले मिलेंगे। चलते हैं बुर्ज मीज़ान की तरफ। जब 12 जुलाई से 24 अगस्त तक मरीख बुर्ज सौर में रहेगा, तो वो मीज़ान बुर्ज वालों के खाना नंबर 8 में रहेगा। इनके खाना नंबर 8 में रहने से तो बुर्ज मीज़ान वालों को अपना कारोबारी मुआहदात, इनकी ज़िंदगी अगर मौत की नज़र हो रही थी तो उनकी ज़िंदगी पर मौत के असरात ख़त्म होंगे, ज़िंदगी पर मौत के साए मंडलाते अब ख़त्म होंगे। इसके अलावा इनके जो है ना जो मुआहदात हैं वो ज़बरदस्त होते दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म के मुआहदात हो सकते हैं। इसके अलावा इनके जो है ना इनका कर्ज वसूल होगा, डूबी हुई रकम मिल सकती है। कर्ज अगर ये लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर कर्ज अदा करना चाहें तो इनका कर्ज बहुत जल्द अदा होगा। इस बात नियत करें इंशाअल्लाह कर्ज अदा होगा। इसके बाद इनके अगर कोई केस मुकदमात हैं तो वो इनके हक में होते दिखाई देते हैं। अगर कोई केस मुकदमात का आगाज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा वो विरासत और जायदाद के मामलात भी इनके हक में होते नजर आते हैं। अगर विरासत और जायदाद के मामलात पेंडिंग है तो ये बहुत अच्छा वक्त है इसको हल करने का। चलते हैं बुर्ज सौर की तरफ, बुर्ज अपना अकरब की तरफ। बुर्ज अकरब वालों के जब ये 12 जुलाई से 24 अगस्त तक बुर्ज सौर में मरीख का क़याम होगा, तो मीज़ान अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 7 पर लगेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, इनके सियासी, समाजी, सियासी, इक़्तिसादी ये सफ़र आसान होंगे, और इनको सियासी समाजी तकरीबात का ये हिस्सा होंगे। वो लोग जिनकी शादियां ताहाल रुकी थीं उनकी शादियां हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी जो है ना अकरब बुर्ज वाले वो इस दौरान कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो है ना मंगनियाँ, शादियाँ जो कि मनपसंद थी वो भी होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा इनके जो है ना अपना शिराकती कारोबारी दोस्त जो कि नाराज़ थे, या शिराकती कारोबारी दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़े थे और वो मामलात अदालत में थे और उनके झगड़े तूल पकड़ चुके थे, अब वो थोड़ी सी कोशिश से भी अपने जो ना सुलझते हुए नजर आते हैं। उनमें राज़ीनामा होगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात चाहे वो अदालत का तक ही जा चुके थे तो भी उनमें राज़ीनामा होता दिखाई देता है। तो इस दौरान अपना अगर किसी की शादी पेंडिंग में थी तो वो शादी इस दौरान वो करें तो उनको कोई शक नहीं कि उनकी शादी हो जाएगी। अब बुर्ज कौस की तरफ चलते हैं। तो बुर्ज कौस के जब 12 जुलाई से 24 अगस्त तक बुर्ज सौर में मरीख होगा, तो कौस बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से, खाना नंबर 6 किसी के ज़ैचे का बुरा खाना होता है। इसमें बजाय
नुकसान के फ़ायदा होता है, तो अगर कोई बुरी हालत उसमें से गुजर रही हो, लेकिन इसमें तो ये बहुत अच्छी हालत है जो कि गुजरेगी। तो जो बुर्ज जो है ना कौस के जितना भी बड़ा मर्ज होगा उस मर्ज से इनको निजात मिलेगी, और इसके अलावा इनकी जो ना मुलाजमती तरक्की होगी, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो, इनको कारोबारी तरक्की और जो ना मुलाजमती तरक्की किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब ये तरक्की करते हुए नजर आते हैं। इनको जॉब अगर तब्दील करना चाहें कर सकते हैं, नई जॉब भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनका जो मर्ज है वो जिस शिद्दत का है वो ख़त्म होगा, पुरानी बीमारी का खात्मा होगा, नई बीमारियां में कुव्वत मदाफ़त, इनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। चलते हैं जद्दी बुर्ज की तरफ। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 5 पर जब मरीख 12 जुलाई से 24 अगस्त के दरमियान बुर्ज सौर में रहेगा तो इनके खाना नंबर 5 में सफ़र करेगा, तो जद्दी के औलाद के मसाइल हल होंगे, जद्दी के किस्मत बुलंद होगी, सट्ठा जुबान दादा के कामों में इनको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इनको अपना औलाद, अगर किसी की औलाद नहीं है तो इस दौरान इनको औलाद होती नज़र आती है, और इसके दौरान जो है ना औलाद के तमाम मुमकिन मसाइल, इनकी जॉब, मंगनी, शादी भी हल होती नज़र आती है। और इसके अलावा जो ना अगर किसी की मंगनी पेंडिंग में थी और मनपसंद मंगनी पेंडिंग में थी, वो इस दौरान इनकी मंगनी शादी भी होती नज़र आती है। इसके अलावा अब हम चलते हैं बुर्ज दिल्लो की तरफ। बुर्ज दिल्लो जब 12 मार्च से 24 अगस्त के दरमियान मरीख बुर्ज हमल में होगा तो बुर्ज दिल्लो के खाना नंबर 4 में सफ़र करेगा। तो खाना नंबर 4 किसी की जायदाद, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट और जो है ना इसको वो कवर करता है। तो इनके ख़ानदानी मसाइल जो उलझे हुए थे वो दुरुस्त होंगे। इसके अलावा इनके नई सवारी ये ख़रीदते नज़र आते हैं। अगर पुरानी सवारी ख़राब थी, अगर उसको वो ये बनाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो सवारी बन जाएगी और आपके दोबारा मसाइल खड़ा नहीं करेगी। ख़ानदान में जो ख़ानदानी उलझनें थी वो भी ख़त्म होती नज़र आती हैं। जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट, अगर आप जायदाद खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान बहुत अच्छा वक्त है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी ये फ़ायदा देती नज़र आती है। अगर आप एक मकान से नए मकान में तब्दील होना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है, आप इस दौरान तब्दील हो सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा वक्त मुहैया कर सकता है। आप किराए के मकान से अपने घर के मकान में आ सकते हैं। ये वक्त है बेहतरीन जब आप अपना मकान ख़रीदते नज़र आते हैं, आपको ज़राए अल्लाह ताला मुहैया करेगा। चलते हैं बुर्ज हौद की तरफ, हमारा आखिरी बुर्ज हौद। उसके जब ये 12 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान बुर्ज सौर में मरीख होगा तो इसके खाना नंबर 3 पर लगेगा। खाना नंबर 3 में जब ये सफ़र करेगा तो खाना नंबर 3 जो है ना अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार और जो है ना अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी सफ़र होते हैं। इस दौरान अगर किसी के ससुराल वाले उसके खिलाफ दांत दिखाते हैं, बातें करते हैं और इनके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं तो ये वो वक्त है जब इनको नथेल लगाम आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इस सफ़र में अगर आप जो है ना अपने कीमती कागजात की हिफाजत करें, सफ़र में आपका हादसा तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी कीमती कागजात गुम होने की जो है ना गुम होने के ख़तरा है, आप ज़रूर इस दौरान एहतियात करें। इसके अलावा छोटे बच्चे तालीम में बहुत दिलचस्पी लेंगे, अब छोटे अगर बच्चे आप उनको स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं तो आप इस दौरान करा सकते हैं। चलिए चलते हैं कि अब हम इसको और कैसे दोबाला करें कि इसके और भी जो है ना फ़ायदे ज़्यादा बढ़ जाएं। तो हम चलते हैं वज़ाइफ की तरफ, वज़ाइफ और सदक़ात की तरफ। सदक़ात सबसे पहले ये है कि आप दाल, मूंगी दाल, मसरी, बाजरा, सूरजमुखी चावल, टोटा ये इकट्ठे मिलाकर आप जो है ना हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सदका कर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप वज़ाइफ पढ़ना चाहते हैं तो हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार वाले दिन या फ़तह 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले या मतआलु 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार और जुमे वाले दिन या नूरो 256 बार अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। और इस मरीख के ट्रांजिट से आप बुर्ज सौर में अब वो फ़ायदा उठाएंगे कि जो ज़िंदगी भर आपको कभी पहले ना मिला हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं।